Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical or non-medical stream. Today's topic is to derive an expression for magnetic field produced by a current carrying solenoid using Ampere's circuit law as well as toroid. First of all, we done with the solenoid. What I mean by solenoid? A solenoid consists of an insulating long wire closely wound in the form of helix and its length is very large as compared to its diameter. मतलब एक solenoid ऐसा कुछ है जो एक insulating लॉन्ग वायर का बना हुआ है जो कि बाउंड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. हेलिक्स मतलब शेप से है इसका एंड इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, जिसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर. वी आर कंसिडरिंग हियर अ सोलेनॉइड which is carrying current in this side, it is in the upward direction and this side in the downward direction, and according to the polarity it becomes a south polarity, and when we see this side this becomes a north polarity that we already done in the previous lectures about this north and south polarity, so we can't go into deep. Next is we have to take a one loop a dash, b dash, c dash and d dash in the solenoid having current carrying current I. So similar is the way to write. Consider current carrying solenoid having number of turns per unit length, जिसकी number of turns हो per unit length, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल a dash, b dash, c dash and d dash such that जो a dash, b dash इसकी लेंथ है that would be L. अब मैंने कंसीडर किया है एम्पियर्स सर्किट लॉ से मुझे करना है, सो इट इज ऑब्वियस दैट पी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश लिया है मैंने अब यहाँ पे. अब ये क्लोज्ड जो मैं सरफेस ले रही हूँ वो ये वाला सरफेस ले रही हूँ ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश. दैट इज व्हाई इन पर्टिकुलर आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर दैट किस इंटीग्रल के अलोंग मैं बी डॉट डीएल वेक्टर को ले रही हूँ, दैट इज ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश म्यू नॉट आई डैश, वेयर n is the number of turns, ये small क्या है number of turns per unit length, यानी कि small n is equals to capital N divided by n. That means small n into L is equals to n. तो ये number of turns आ गए मेरे कि कितने number of turns इस particular length में आ रही हैं, that is n into L. जो I dash है वो किसके बराबर है n into I, number of turns जितने भी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं इनटू कितना करंट उनमें फ्लो हो रहा है, सो n इंटू आई. सो आई डैश की वैल्यू क्या होगी n इंटू आई, वेयर कैपिटल N इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल L. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन इन दिस आर्टिकल. सो टोटल करंट बिकम्स I dash is equals to n L. N is number of turns, L is the length of the conductor, n is the number of turns per unit length. जो small n है ना वो है number of turns per unit length, और जो capital N है वो सिर्फ है number of turns, और L is the length of the loop जो हमने consider की है, यहाँ पे length आ गई into I, because I dash किसके बराबर था कैपिटल N into I, और कैपिटल N किसके बराबर है n into कैपिटल N. So n into कैपिटल L into I, n into capital N into I is equals to I dash. So similar अब मैंने इस पूरी लूप को लिया है और इस लूप की कितनी साइड्स हैं, 4, A dash, B dash, B dash, C dash, C dash, D dash, D dash, A dash. ये देखिए सभी को तो मैंने क्या करके लिख लिया, इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करके लिख लिया, सॉरी अलग अलग से लिख लिया कि A dash, B dash साइड का, B dash, C dash, C dash, D dash, then D dash, A dash, सबका B dot DL वेक्टर निकाल दिया is equals to mu naught I. अब B dot DL are in the same direction, किसमें A dash, B dash में और किसमें, so B dot DL is equals to cos of theta, that is cos of 0 degree. यहाँ से कितना आ गया B DL, that is over the integration of A dash, B dash, इसकी बात कर रही हूँ मैं, A dash, B dash, okay. So that would be equal to B integration of DL A dash, B dash is equals to B dot L. That is equation number 2. मैंने सिर्फ अब आप देखिए, एक्चुअली मैं निचोड़ बताती हूँ इसका क्या है. ये मैंने लूप कंसीडर किया है बेटा, इसमें इस केस में सिर्फ A dash, B dash में जो DL है that would be parallel to the B vector,
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, तो सिर्फ इसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसमें बी डैश सी डैश में और ए डैश डी डैश में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और डी डैश सी डैश जो है वो आउटसाइड है, इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो ये वाला कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। यानी कि इन चारों में से हमारे पास सिर्फ ए डैश बी डैश बचेगा। कैसे, आई विल शो यू। ए डैश बी डैश का निकाल लिया, बी डॉट एल, क्योंकि लेंथ डी एल कितनी है, मैक्सिमम एल। अब बी डैश सी डैश का निकाला या फिर डी डैश ए डैश का निकाला। अब इनमें थीटा क्या है, 90 डिग्री। इनमें डीएल इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, सो बन गया ना 90 डिग्री ये दोनों। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, 0। अब ये जो है ये आउटसाइड ही लाई कर रहा है, सी डैश डी डैश, तो बी आउटसाइड इज 0, दैट मीन्स सी डैश डी डैश वाला वेक्टर भी क्या हो गया, 0। तो सिर्फ ए डैश बी डैश वाला बचेगा, बाकी के तीन क्या हो जाएंगे, 0, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी इंटू वेक्टर ऑफ dl वेक्टर का इंटीग्रेशन a डैश b डैश ओवर द लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i डैश। और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, कैपिटल L, दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i। अब b कैपिटल L म्यू नॉट i डैश किसके बराबर है, n कैपिटल L i, यहां से किया था ना हमने, i डैश किसके बराबर है, n कैपिटल L i, वही पुट कर दिया हमने, L के साथ L कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। और आपको एक बार ध्यान में रखनी है दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड अगर आप निकालोगे तो वो हाफ होगा एज दैट ऑफ इट्स सेंटर। नेक्स्ट इज ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। अब टोरॉइड होता क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड होता है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप, जिसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट होती है, विच इज इनफाइनाइट लेंथ आएगा यहाँ पे, इज कॉल्ड टोरॉइड। और यू कैन से अ टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये होता है बच्चे सोलेनॉइड बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये एक एंडलेस है क्योंकि इसका कोई एंड तो है नहीं, सर्कल में चेन में है ना ये। So we have to consider a circular path in a toroid at a distance r from the center of toroid. We have to calculate magnetic field. सेंटर से इसका डिस्टेंस r, दैट मीन्स इट्स रेडियस हो गया। dl हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है ab, dl की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो b वेक्टर dl वेक्टर की क्या हो जाएगा, पैरेलल। और करंट इसने क्या कैरी किया हुआ है, i। ab इज इक्वल टू dl एट पॉइंट b, सर्कुलर पाथ है, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एम्पियर्स लॉ यूज किया हमने, वही कहानी जो हमने सोलेनॉइड में रची थी, दैट इज आई डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है, दैट वुड बी इक्वल टू आई डैश इंटू एन इंटू एल किया था ना हमने, रिमेंबर क्या किया था, नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अगर मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स ही आएंगे, n is number of turns per unit length into length। अब इसकी होल लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस जितना इसका होगा, सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई r, तो मैंने यहाँ पे सीधे ही लिखा हुआ है n इंटू एल की जगह 2 पाई r इंटू आई। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। सो दिस इज अ वेरी मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। सो p डॉट dl ओवर द होल सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, आई डैश की वैल्यू पुट किए यहाँ से बेटा n इंटू 2 पाई r इंटू आई। अब b वेक्टर dl वेक्टर की क्या है, पैरेलल, सो b डॉट dl इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, तो इंटीग्रेशन सिर्फ बच जाएगा dl का, बाकी ये सब ऐसे का ऐसा ही है। अब dl का इंटीग्रेशन है यहाँ पे, लेंथ तो है नहीं, क्या है सर्कमफ्रेंस, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सो dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई r, वही 2 पाई r के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। That's so simple. That is a magnetic field due to a toroid, and toroid is a, what do you mean by toroid? It is a endless solenoid in the form of ring. That's all. Thank you so much.